I would tell you that heart disease is a complex disease, and it is because of the involvement of so many other factors like the family history, sedentary lifestyle, nutrition, smoking, obesity, diabetes, elevated blood pressure, adverse lipid profile, that we get heart disease. But we can broadly classify the risk factor into two types. One is modifiable and other is non-modifiable. So modifiable risk factor कौन से होते हैं? If you are awake, you can just read on the screen. So these are the risk factors which you can't change. And incidentally, India is the race which has got the highest risk of heart disease. So पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्क हमको ही है, ठीक है? इसलिए जाग जाओ, बिकॉज नेक्स्ट फ्यू स्लाइड में आपको बताऊंगा कि क्या क्या रिस्क है उनको, ठीक है? सो इनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, वी कांट कंट्रोल देम. अगर आपके फादर को, मदर को, अंकल को हार्ट डिजीज थी, तो चांसेस आर दैट यू विल ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय हार्ट डिजीज. एज यू ग्रो ओल्डर, the chances of getting heart disease can also increase, and also in females the risk of getting some type of heart disease during pregnancy and some type of heart disease after menopause, they are also higher. So you can't change that. So what you can change is, luckily there are risk factors which are modifiable. So what are those? One is high blood pressure, high cholesterol, smoking, physical inactivity, obesity, diabetes, stress, anger and relationship issues. कभी आपने स्पाइडर देखा है? क्या करता है स्पाइडर? जाल बनाता है अपने आसपास और उसमें फंस जाता है, ठीक है? सिमिलरली हम लोग भी यही करते हैं. आफ्टर बर्थ वी वीव द वेब ऑफ रिस्क फैक्टर्स अराउंड अस, बिकॉज रिस्क फैक्टर्स आर कॉमन. ये जो टबैको स्मोकिंग है, अल्कोहल है, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, दे आर कॉमन फॉर सो मेनी डिजीजेज लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, क्रॉनिक लंग डिजीज, डायबिटीज. और इफ अ पर्सन हैज वन ऑफ दीज डिजीज, द चांसेस ऑफ गेटिंग द अदर डिजीज increases or decreases? Increases. So we have to take care of this spider's web, and we have to prevent lifestyle diseases. तो कोई मुझे ये बताएगा कि at what age blockages start? एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं ना, at what age it starts? आफ्टर 30. जो लोग बोलते हैं आफ्टर 30 रेज योर हैंड्स. जो लोग बोलते हैं बिलो 30 वो रेज योर हैंड्स. और जो लोग कुछ भी नहीं बोलते उनको क्या करें? एवरीबडी क्लैप फॉर देम. दिस इज वॉट यू कॉल अनसर्टेनिटी. हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग, 90% लोग, दे लिव इन अनसर्टेनिटी. पूरी जिंदगी गुजर जाती है और हमको पता नहीं लगता कि क्या है, ठीक है? तो अनलेस यू टेक अ डिसीजन इन योर लाइफ, यू कैन रीच नोवेयर, है ना? तो इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, लर्न हाउ टू टेक डिसीजन. डिसीजन गलत भी हो सकते हैं. जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने बहुत बार गलत डिसीजन लिए हैं और उसके बाद उन्होंने सीखा है कि क्या नहीं करना चाहिए. द मोर यू लर्न व्हाट नॉट टू डू, द वाइजर यू बिकम एंड द मोर सक्सेसफुल यू बिकम. तो ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होता, ठीक है? तो अब ये जो हमारी डिजीज़ है, एथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट few years of life, and we did a survey in youngsters and we took part of the coronary artery, and we examined under the microscope for evidence of atherosclerosis. So can you guess at what age there was 100% evidence of atherosclerosis in the arteries? Can anybody guess the age? It's a guess. Huh? 80. Any guess?
40. Any more guess? Jonathan, can you make a guess? No. Very Any guess? much younger. Much younger. Any guess? Much younger. Quote one age. 8, 10. 10. So that is too young for 100%. But what we found was that at the age of 22, everybody was having some evidence of atherosclerosis. So how many of you are below the age of 22? Raise your hands. I think most of you are below 22. So अभी भी चांस है. अभी भी चांस है. अभी भी चांस है कि 100% नहीं हुआ होगा. So start from today. All the preventive measures that we are going to discuss now. ठीक है? So coming to the first risk factor. So what is the first risk factor? सबसे खतरनाक रिस्क फैक्टर क्या है? मेरे टॉक में चीटिंग अलाउड है, स्क्रीन पे आंसर है, ठीक है? क्या है? नहीं पता लग रहा है? अरे यार सिंपल है, ये देखो ना ग्राफ यहाँ पे, टोबैको स्मोकिंग पीछे तक दिख रहा है. So number 1 risk factor is tobacco smoking. Number 2 is overweight and obesity. Number 3 is alcohol. उसके बाद ये सारी infectious diseases, ठीक है? और cancers तो काफ़ी पीछे आते हैं. So अभी if we talk about tobacco, इंडिया में सेकंड हाईएस्ट स्मोकर्स हैं, चाइना में सबसे ज़्यादा है. लेकिन इस पे मैं आई कांट टेल यू टू क्लैप बिकॉज दिस इज वेरी सैड. एंड इफ यू थिंक अबाउट टोबैको, आउट ऑफ द 8 diseases which are cause of death, first 6 they are because of टोबैको. ठीक है? तो इतना एक सिगरेट पीना भी खतरनाक हो सकता है. एंड दोज हु स्मोक दे लिव 13 years less compared to the नॉन स्मोकर्स. एंड दोज हु लिव इन द विसिनिटी ऑफ स्मोकर्स, आपके कोई फ्रेंड या आपके फैमिली में कोई स्मोक करता है आपकी कम्युनिटी में, यू आर इनहेलिंग द सेम स्मोक, सो यू आर ऑल्सो इंक्रीजिंग योर रिस्क एज अ पैसिव स्मोकर. अभी इस पे ज़्यादा डॉक्टर कशिश ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन जितना मुझे पता है मैं इतना करूँगा. एंड आई होप यू अग्री विद दिस. और अब वी कम टू ओबेसिटी. ओबेसिटी, कैन यू डिफाइन ओबेसिटी? एनीबडी को पता है कि ओबेसिटी क्या होती है? कम ऑन यार, ओबेसिटी, व्हाट इज ओबेसिटी? कैसे मेजर करते हैं? BMI. How much should be the BMI? 20? 25. For 25 is normal? Yeah, obesity. 18 to 24 is normal. ये कौन सी डेफिनेशन है? Anybody wants to modify? BMI, come on यार, don't tell me BMI तो पता होगा. तो यहाँ पर आजकल तो सारे यंगस्टर फिटनेस के लिए जिम जाते हैं, BMI नहीं बताते वहाँ पे. बॉडी मास इंडेक्स है, लेकिन कितना होना चाहिए? अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि आपको है या नहीं है? हाँ, यस. 18 to 22. खड़े होके बोलो. Someone there saying 18 to 25. 22. क्या नाम है आपका? नवदीप. कौन से ईयर में हो? 3rd year of B Pharma. Farm D. Everybody clap for her. आप जिम जाते हो? नहीं जाते? सो जिम जाने से फिट नहीं हो जाते?
ये मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ टाइम एंड अगेन कि जिम जाने से डोंट थिंक कि जिम जाने से फिट हो जाओगे। जितने सेलिब्रिटीज की डेथ की खबर आई है ना, सारे रोज 1.5-2 घंटे जिम में जाके करते थे। ठीक है, सो 18 to 22 इज द कट ऑफ फॉर नॉर्मल रेंज। 22 से लेके 24.9 तक क्या होता है? ओवरवेट। and 25 and above is obesity for Indians and Asians। ठीक है, इंडियंस एंड एशियंस की जो पैरामीटर हैं वो लोअर रखी हैं बिकॉज दे हैव हाईएस्ट रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, और अमेरिकन एंड वेस्टर्न पॉपुलेशन की जो है कट ऑफ जो है वो हायर है बिकॉज उनमें रिस्क हमसे कम होता है। तो वेस्ट कितना होना चाहिए, कोई बताएगा मुझे? 30? अगर कोई 6 फुट का बंदा है उसका भी 30, कोई 5 फुट का है उसका भी 30, कैसे पता चलेगा? मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ आपको। घर जाके सब लोग अपना वेस्ट नापना अम्बलाइकस के लेवल पे, अम्बलाइकस पता है ना, नाभि, वहाँ पे नापो अपना इंचेस में, और फिर देखो कि आपकी हाइट कितनी है इंचेस में। ठीक है, सो योर वेस्ट शुड बी लेस देन हाफ ऑफ योर हाइट। ठीक है, तो अगर किसी की 5-6 हाइट है तो 33 से नीचे होना चाहिए वेस्ट। अगर 34 है तो इसका मतलब उसको वेस्ट ही है। ठीक है, अगर जाके सब अपना कैलकुलेट करना। सो नेक्स्ट इज कि कौन सा ड्रिंक सबसे अच्छा होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके काम के, आपसे रिलेटेड हैं, इसलिए बोर होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। कौन सा ड्रिंक सबसे अच्छा है? वाटर। ठीक है, किसने बोला था? खड़े हो जाओ, चॉकलेट ले लो, नाम बता दो। ठीक है, चॉकलेट ले लेना, यहाँ पे मीनाक्षी दे रही है। ठीक है, वाई? हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिज्म होती है हर चीज़ के लिए चाहिए वाटर। अब्जॉर्प्शन के लिए फूड की, डाइजेशन के लिए, हमारे हर सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए वाटर चाहिए होता है। और जो बाकी ड्रिंक्स हैं, लोग कोई कहता है कि वाइन अच्छी होती है, कोई कहता है बियर अच्छी होती है, कोई बोलता है कोल्ड ड्रिंक अच्छी होती है, ये होता है वो होता है। हर ड्रिंक में कुछ ना कुछ कैलोरीज होती हैं, और हर ड्रिंक का जो अल्कोहलिक ड्रिंक है उसका हम बाद में डिस्कस करेंगे कि उनका भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। और देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज डन स्पेशली इन द वेस्टर्न कंट्रीज, जिसमें वो सोचते थे कि जो वाइन है उससे हार्ट का रिस्क कम होता है, लेकिन वहाँ कोल्ड क्लाइमेट होता है और शाम को वो वाइन लेते हैं, स्लोली सिप बाय सिप पीते हैं और मील के साथ लेते हैं, जिसमें अब्जॉर्प्शन कम होती है, स्लो होती है, उनके ब्लड के प्लाज्मा लेवल उतना राइज नहीं करते, और उनको जो है उसके टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट नहीं होते, ब्रेन को भी इतना अफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो स्लोली लेते हैं और मील के साथ लेते हैं। बट इंडियंस जो हैं दे टेक अल्कोहल एट अ मच फास्टर रेट एंड द ब्लड लेवल्स दे राइज वेरी हाई, एंड देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव दैट इंडियंस दे आर getting any benefit by taking alcohol. So what is the recommendation of American Heart Association is that if anybody wants to take a drink, you should drink in moderation. Moderation का मतलब है कि for male not more than 2 drinks in a day, and for female not more than 1 drink in a day. If you are taking these recommendations, then the chances of getting side effects, they will be less. But that does not mean that you will never get the side effects. But if you take in excess, then chances of getting heart disease, heart failure, liver cirrhosis, it increases. और कई लोग होते हैं वो 1 महीने तक ड्रिंक नहीं लेते और एक दिन में फिर इतना लेते हैं कि वो नाली में जाके गिर जाते हैं। So, do you think it is safe? Do you think it is safe? No. So, even if you take once in a year, you should not exceed more than 2 at a time in a day. Okay, and that too slowly over a long period of time, sip by sip, and along with some meals, so that it is not absorbed at a faster rate into your bloodstream. Now we come to the food. खाने में क्या करना चाहिए?
So here there is a pyramid. So you should take more of water, take more of fruits and vegetables, and you should take less of sweets, less of oils and fat, and less than 5 gram of salt and sugar every day, and you should avoid cold drinks and you should avoid junk food. सो कुछ लोग हैं जो हमेशा यंग दिखने चाहते हैं, या फिर जैसे अभी हम कमर की बात कर रहे थे, इफ़ यू वांट टू हैव अ वी शेप्ड बॉडी देन योर हैवीएस्ट मील शुड बी, अगर हम 3 मील लेते हैं ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो हैवीएस्ट कौन सी होनी चाहिए? ब्रेकफास्ट, उससे कम लंच और सबसे कम डिनर. सो हम यूजुअली क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं और लंच हम कभी कभी ले लेते हैं जंक फूड, और उसके बाद डिनर सबसे हैवी होता है, और उसकी वजह से क्या होता है? एप्पल शेप्ड ओबेसिटी. ठीक है. सो एक और रिस्क फैक्टर क्या होता है? विंटर्स. उसके क्या कारण होते हैं? विंटर्स में बहुत सारे कारण होते हैं. उनमें से एक कारण ये भी है कि हमको सनलाइट का एक्सपोजर कम होता है. When there is a less exposure of sunlight, then the synthesis of vitamin D is less in our body. And vitamin D का क्या रोल होता है? Strengthening the bones. उसके अलावा do you know कि vitamin D is also responsible for preventing heart attacks and the risk of dying because of heart attacks. तो जो हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है वो सनलाइट ना मिलने से इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज जो हमारे बॉडी में स्क्वालिन है उसको अगर सनलाइट मिले तो विटामिन डी में कन्वर्ट होती है, अगर ना मिले तो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाती है. So if we don't get exposed to sunlight, then the synthesis of cholesterol increases. And vitamin D protects our heart and decreases the risk of getting fatal heart attacks. ठीक है. अब स्लीप, ये सब आपका फेवरेट होगा. स्लीप कैसा होना चाहिए? How much we should sleep every day? 7 to 8 hours. But do you think sleeping in the class is beneficial? Unfortunately not. So किस तरह का स्लीप होना चाहिए? नाइट स्लीप. नाइट स्लीप इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज नाइट स्लीप इज अंधेरा होने के बाद एंड सवेरा होने से पहले. सो दोज हु स्लीप एट 1 o'clock, 2 o'clock in the night and wake up at 10 o'clock, it is not night sleep. So you are only completing 2-3 hours of night sleep and you are at risk of getting so many problems including heart disease, diabetes, and your lifespan is also getting reduced because of this. Nowadays lot of youngsters, they are coming to us with high blood sugar and heart problems because of this one problem, that every night they are sleeping late. ठीक है. तो अगर if we don't sleep, we are not able to think properly, we are not able to remember, we are not able to perform well in the exams, and we are getting stressed, we are getting anxiety and so many other problems. So now in the end I will tell you that if we have so many risk factors, if there are more than one risk factor, the risk increases 2 times. If there are 3-4 risk factors, then the risk of getting these diseases increases multiple times. So first of all, you have to identify how many risk factors you have, and then you can control them.